नमस्कार, मैं हूं नगमा। यूक्रेन पर रूस के चौतरफा हमले का ये चौथा दिन है और लगातार युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहां पर सुरक्षा बल, जो यूक्रेन के सुरक्षा बल हैं, वो रूसी सैनिकों से भिड़े हुए हैं। अभी तक जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना और आम नागरिक रूस के हमलावर सैनिकों से लड़ रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत पूरी तरह से सामने नहीं आई है। रूस की सेना कीव में चारों तरफ से घुस आई है, चारों तरफ बम धमाकों और गोलियों की गड़गड़ाहट है। यूक्रेन को कई देशों की तरफ से सैन्य और अन्य मदद दी जा रही है। चेक सरकार ने हथियार मुहैया कराए हैं, इजरायल मानवीय मदद दे रहा है, तुर्की ने रूस की हमलावर कार्रवाई को युद्ध का नाम दिया है। यूरोपियन यूनियन ताज़ा पाबंदियों के तहत अपना एयर स्पेस रूस के विमानों के लिए बंद कर सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर पहले ही कई आर्थिक पाबंदियों का ऐलान किया है। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाई में 4300 रूसी सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन इस दावे की कहीं और से कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोनों ही तरफ से इस तरह के दावे हो रहे हैं, प्रति दावे हो रहे हैं। रूस की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें नागरिक इलाकों में भी गिर रही हैं, जिससे आम नागरिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब के बीच अब जर्मनी जो है और उसके जो पश्चिमी सहयोगी हैं, वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि रशिया को जो दुनिया की एक जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उससे अलग थलग कर दिया जाए। तो इसका आर्थिक असर रूस पे काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है अगर वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट के बाहर किया जाएगा। और आपको सीधे ले चलते हैं, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग चल रही है, जहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला जानकारी दे रहे हैं। And down with Romania and Moldova. These are where our teams are located. They keep going in and out of Ukraine, but they are along the border areas there. Next, please. These are all the flights that you have. You see, 4 flights have already concluded. 4 flights have either brought or bringing people back as we speak. There are another 2 flights which are, going to be leaving tonight and tomorrow. And there is a range of flights. If we can go to the next also. It comes on it. Yes. Yeah. So there is a range of flights that we have already scheduled, and essentially our plan is to ensure that as we have a number of our citizens in any of the points that are there, a flight is ready even before they get there. So the idea is to minimize the time that they have to spend at the airport. We have, through our Ministry of Civil Aviation and with the cooperation of all the airlines, organized a number of aircraft that are ready to go at short notice, pick up our citizens and bring them back to Delhi. So we also wanted to give you a sense that the fact that this is not the easiest situation that we can deal with. I know that there is a lot of concern from the point of view of parents, family members of those who are there. The Ministry of External Affairs, under the direct supervision of the External Affairs Minister and the overall guidance of the Prime Minister, is doing everything possible to make sure that the safety, security and the interests of our citizens in Ukraine are given the highest priority. The essential points that we wanted to make was that we are innovating on the ground as we speak. We are taking the steps necessary that would ensure that we have the best possible options before us as we keep moving along. One more point, yes, which I wanted to add. If we can go back to the map, we will see, if you go to the areas of Kharkiv and Suma in the eastern part of Ukraine. Now, these are conflict areas, and we have asked our people to stay as safe and secure as possible. But we have also sent a team from our embassy in Moscow
down to the border areas to prepare for the eventuality where they can be evacuated from there. In other words, we are arranging accommodation, we are mapping out routes, we are looking at transport. So we are doing what we can to get them out as and when we can. I already mentioned that the International Committee of the Red Cross is also working with us, and they will also be on the ground there. This is a conflict zone, and we have to be very cognizant of that factor. But my conversation with both the Ukrainian as well as the Russian ambassadors was reassuring, and I think I got every sense that we will get their fullest support when it comes to the interests and well-being of our citizens in Ukraine. So I will stop there. Thank you very much, sir. That was a very comprehensive presentation. I'm sure I can see some hands going. Take a few questions. Let me start with this, since you raised your hand first. Neeraj Pratap. Sir, Neeraj, News 18. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जानकारी दे रहे थे जो स्थिति इस समय बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच, और वहां पर जो भारतीयों को लेकर चिंता है कि 15,000 के करीब भारतीय छात्र अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, और वो उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश में भारत सरकार लगी हुई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह भी जानकारी दी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस भी भारत के साथ इस समय काम कर रही है, और कई प्लेन आज आए हैं, कुछ 2 और प्लेन आज रवाना हो रहे हैं, और भारतीयों को ये भी कहा गया है कि वो पश्चिम की तरफ बढ़ें ताकि वहां से उन्हें निकाला जा सके। इस बीच कीव में जो है वो जबरदस्त लड़ाई जारी है। न सिर्फ राजधानी कीव में बल्कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों में जैसे खार्कीव जैसे शहरों में काफी लोग जान बचाने के लिए बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं। खाने पीने की परेशानी तो है ही, सबसे ज्यादा खतरा कि इन रिहायशी इलाकों में भी युद्ध छिड़ गया है और मिसाइलें गिर रही हैं। कई लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे हालात में बीमारों को इलाज पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो युद्ध से पूरी तरह से त्रस्त है यूक्रेन के तब बड़े शहर भी, क्योंकि रिहायशी इलाकों पे भी इस युद्ध का असर देखा जा रहा है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, घायल हैं। यूक्रेन के शहनी बॉर्डर से भारतीय छात्रा ने अपनी एक ऑडियो क्लिप को भेजा है और बताया है कि वो इस समय और वो लोग, उनके जैसे लोग किस हालात में हैं। खोला था, यूक्रेनियंस को घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफी प्लीड किया, हमारे साथ हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया, और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज। और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। उसके बाद रात को आई थिंक अराउंड 11-12 बजे और यहाँ पे आने के बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने बाद में लाइन में हम लोग अंदर गए, तो अंदर वीजा में देयर इज सम गेम, कुछ तो जो आपको खेलना है, हंटर गेम करके, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। उधर जाने के बाद वो रॉड लेके खड़े थे, गन लेके खड़े थे, और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि दिस इज यू हैव टू, आपको ये गेम खेलना है, उससे वीजा मिलेगा। और जो लोग वहाँ पे थे उनको हाथ से मारा है, लड़का लड़की कुछ नहीं देख रहे यहाँ पे। बहुत ही भयानक और दुख भरी ये बात जो आपने सुनी, ये बयान, ये दास्तान जो बयान कर रही हैं वो छात्रा हैं जो कि यूक्रेन में फंसी हुई हैं। उन्होंने अपनी ऑडियो क्लिप किसी तरह से भेजी है, किस बेरहमी से वहां पर कुछ भारतीय छात्रों को टॉर्चर किया गया, जबकि भारत सरकार लगातार इसमें लगी हुई है कि कैसे वहां से लोगों को निकाला जाए। और काफी विमान पहुंचे हैं, 709 लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो लौटे हैं, उसके पहले भी निकाला गया वहां से और अभी भी कोशिश जारी है। लेकिन ये एक भयानक खबर है कि वहां पर भारतीय छात्रों को भी टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। खार्कीव में काफी छात्र फंसे हुए हैं जो वीडियो संदेश भेजकर वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं।
मेरा नाम फिरोज खान है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। इस टाइम हम यहाँ खारकी में प्रेजेंट हैं और यहाँ की आप सबको पता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम 2 दिन हो गए हमें बेसमेंट में रहते हुए, ऊपर ब्लास्टिंग चल रही है, ऊपर जाना भी हमको अलाउ नहीं है। खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर सारी मार्केटें बंद हो चुकी हैं, पानी भी अवेलेबल नहीं है और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। फैमिली का घर पर रो के बुरा हाल है, वहाँ से फ़ोन आते तो बच्चे हो ज़्यादा डर गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी छोटे से बेसमेंट के अंदर इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तो हम इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि प्लीज जल्द से जल्द हमारी हेल्प की जाए। हमें मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारी मदद करेंगे। मेरा नाम निशांत और मैं 5th ईयर मेडिकल यूनिवर्सिटी में खारकिव में पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया है। सब लोग अब सामान स्टॉक कर रहे हैं अपना, और ये मेरे पीछे ये जितना भी लाइन लगा हुआ है ये सारा ये सुपर मार्केट के लिए है। पता नहीं सामान है उसमें, नहीं है अभी पता नहीं। हम लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पे। थोड़े बहुत एयर स्ट्राइक्स हुए यहाँ पे, उस टाइम पे हम लोग मेट्रो की तरफ भागे, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल लग रहा है तो उस हिसाब से देख रहे हैं। इंडियन एम्बेसी से यही है कि जो ऑलरेडी सेफ हैं लिवीव में और उज़होरोद साइड में जितने भी लोग सेफ हैं उनको भी निकालो, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल हॉटस्पॉट बना हुआ है कीव, खारकीव, जहाँ पे रोज पता नहीं कब ना सुबह में एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, शाम में एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उन लोगों को निकालने की थोड़ी कोशिश की जाए और तो जैसे जितना जल्दी हो सके हम लोग की हेल्प करें। और इसी तरह के लगातार अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। संघर्ष यूक्रेन के कई शहरों में जारी है। इनमें कई शहरों में भारत के करीब 15,000 नागरिक फंसे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं की ज्यादा तादाद है। यूक्रेन के सुमी शहर में कई भारतीय छात्र हैं जिन्हें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर में राशन ना के बराबर है। सबसे करीबी जो बॉर्डर है वो रूस का है। यही वजह है कि इन छात्रों को निकलने में परेशानी हो रही है। सुमी के हम अभी एटीबी में हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या इंडियन स्टूडेंट जो है वो क्या क्राइसिस फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे हमारे पीछे जो देख रहे हैं इसमें पहले ब्रेड हुआ करता था, पर आज ये सारी खाली है। और भी आगे चलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह सारे फूड के क्राइसिस है, कुछ नहीं। यहाँ पे ये ब्रेड का जोन था, इसमें भी सारे खाली हैं। अगर हम इधर देखें, इधर आप देख सकते हैं यहाँ भी सारे खाली हैं। और अगर बात करें जो हम जनरल यूज का जो हमारे सब्जी होते थे, आलू प्याज, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या कंडीशन है। इधर से मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखें, इसमें बस सड़ा सा 2-3 प्याज बाकी है। और इधर भी वही हाल है, ना आलू है ना प्याज है। यहाँ पे आलू हुआ करता था, ये भी सारे खाली हैं। और चावल जो होता था, चावल और आटा का बात करें, ये वाले जो चावल और आटा होता था सारे ख़त्म है। इधर भी सारे ख़त्म हैं। और यहाँ पे भी मसाले वगैरह ये सब हुआ करता था यहाँ पे, ये भी सारे खाली हैं। तो सिर्फ फाइनली यहाँ पे जो हमें मिला, सिर्फ आप यहाँ से बिस्किट, चॉकलेट और कुछ ले सकते हैं, पर जो डेली यूजेज का सामान होता है जैसे चावल, दाल, आटा, आलू, तेल, नमक, दूध, ये सारे चीज़ नहीं थे। तो अब देखिए आगे क्या होता है, जैसा भी हो बताएंगे। सबसे बड़ा यहाँ क्राइसिस है, अगर पानी और बिजली ख़त्म हो जाएगी तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं है करने वाला, कोई नहीं जानता। और हम जो यहाँ सुमी में है, यूक्रेन का रसिया बॉर्डर ही यहाँ से नज़दीक पड़ता है, बाकी सब बहुत दूर है। यूक्रेन में आज रूसी हमले का चौथा दिन है। यूक्रेन ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है वहां पे घसीटा है और ये मामला जो है वो अभी भी उलझा हुआ है। इस बीच कुछ बातचीत की पहल भी हुई है, लेकिन वार्ता को लेकर अलग अलग दावे हैं। बेलारूस में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, ये रूस का दावा है बेलारूस में, लेकिन यूक्रेन जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस की सेना
रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। बेलारूस की जगह कहीं और वार्ता की जाए, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। वो वॉर्सो की बात कर रहे हैं और कई और जगहों के नाम सुझाए हैं। उन्होंने कहा है कि वार्ता वहां हो जहां से मिसाइल नहीं आते हैं। गोमेल में बातचीत की पूरी तैयारी है, ऐसा बेलारूस ने कहा है। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए वोट डाले गए हैं। इस जिले में इस चरण में 61 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़े हैं और 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शाम के 5 बजे तक जो मतदान है वो 53.93% हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा। स्वागत है आपका। ये 5वां चरण है चुनाव का। इस में वो इलाका आता है जहां पे राम जन्मभूमि और राम जब वनवास गए थे तो वो तमाम जगह ये सब इसमें ही आती है। और लगातार बीजेपी की कोशिश रही है कि ये मुद्दा जो है वो केंद्र में रहे उनकी राजनीति के। पिछली बार तो जो चुनाव वो 2017 में हुआ था उसमें बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया 61 सीटों में। इस बार जाहिर हो सकता है कि कुछ सीटें कम हों। आपको क्या लगता है कि इस 5वें चरण में क्या खास बात दिख रही है? आपको लगता है कि मुकाबला बाइपोलर ही है बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच? जी जी, देखिए नगमा जी, ये जो चुनाव है ये इसमें पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी हुई है। उनका जो राम मंदिर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको वो पिछले 1 साल से पकाने की कोशिश कर रहे थे, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो वक्त वो घड़ी आज है, आज हो चुकी है। अब तो लगभग मतदान खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में और ये जो पूरा क्षेत्र है 61 सीटों वाला जो क्षेत्र है इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2017 के चुनाव में भारी जन समर्थन मिला था। लेकिन इस बार कोई भी आंकड़ा, इवन भारतीय जनता पार्टी के जो भीतरी आंकड़ों से विश्लेषण करते हैं या उनसे बातचीत होती है तो वो कभी नहीं ये दावा करते कि 2017 का वो जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको दोहराने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि जो जातियों का जो छोटी छोटी जातियों जो धार्मिक जो पोलराइजेशन करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी वो खेल उसके हाथ से काफी तो कुछ खिसकता हुआ जा रहा है। इस बार जी कई दिग्गज भी हैं इस बार। खुद केशव प्रसाद मौर्य, आपको क्या लगता है कि उन्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस बार चुनाव में? क्योंकि बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन खोने को बहुत कुछ है। इस बार मुकाबला कड़ा है वहां पे भी और पल्लवी पटेल बहुत अच्छा लड़ रही हैं। जी जी, प्रतिष्ठा, देखिए प्रतिष्ठा सबकी दांव पे लगी है। कांग्रेस का रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर जो कांग्रेस के बड़े मजबूत गढ़ माने जाते थे वहां पर भी भारतीय जनता कांग्रेस जो है उसकी प्रतिष्ठा क्या रिवाइव करेगी कांग्रेस? क्या पूर्वांचल में ये जो मजबूत गढ़ है उसके क्या वहां से वो कुछ नया सूरज उगेगा कांग्रेस का? ये भी काफी कुछ यहाँ निर्धारित होना है। और समाजवादी पार्टी जो कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2017 के चुनाव में लगभग 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे इस इलाके में और उनको 3-4 सीटों को छोड़ के मुझे लग रहा है कि 50 से के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हासिल हुई थी। तो क्या वो परफॉर्मेंस अगर भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं दोहरा सकती तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि जो पिछले 4 चरणों के खास तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बयार सत्ता विरोधी रुझान और किसान आंदोलन और बेरोजगारी और यहाँ आते आते पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते आते जो गाय है, जो ये आवारा पशु हैं, ये बड़ा भारी गले की फांस भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। क्या मतदाता आकलन करेगा इन सभी चीजों का? क्योंकि देखिए कोविड के बाद जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति थी, ऑक्सीजन सिलेंडर, हर एक परिवार से हर एक के किसी का मित्र खोया है, किसी ने रिश्तेदार खोया है, भाई पिता भाई भतीजा। तो ये जो त्रासदियां हुई हैं, क्या ये त्रासदियां लोग भूल जाएंगे मतदान करने से पहले? ये बहुत बड़ा
जी, आप सही कह रहे हैं कि इन त्रासदियों को क्या लोग भूल पाएंगे, और बीजेपी के पास खोने के लिए काफी कुछ है सवाल, लेकिन यह है कि क्या सपा गठबंधन इसका कितना फायदा उठा सकती है। और ये आवारा पशु का मुद्दा, बाकी विश्लेषक और बाकी पत्रकार जो इन इलाकों में गए हैं वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद आपका इस आंकलन के लिए, इस चर्चा के लिए। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, और इस समय मौजूद हैं अयोध्या में। सौरभ, आज अयोध्या में क्या खास नजर आया आपको इस वोटिंग के दौरान? देखिए नगमा, पोलिंग खत्म हो गई है। 6 बजे तक ये पोलिंग होनी थी और जो खत्म हुई है। 5 बजे तक का डेटा आया है, जो अभी आप भी बता रही थी। लगभग 53.93% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार 2017 से लगभग 4% कम है। अभी आखिरी आंकड़े आने बाकी हैं, और अगर बात करें तो अयोध्या में तो ठीक ठाक पोलिंग हुई है, लेकिन जो डेटा है उसके मुताबिक अयोध्या में 58.01% वोटिंग हुई है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, हम देख रहे हैं ये पैटर्न बना हुआ है, चाहे वो गाजियाबाद में हो, नोएडा में, मेरठ में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, और अब प्रयागराज में। जैसे प्रयागराज में सिर्फ 51% वोटिंग हुई है। प्रतापगढ़ में 50.20% वोटिंग हुई है। तो इन इलाकों में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे कम प्रतिशत वोटिंग हो रही है। इसके लोग तमाम मायने निकाल सकते हैं। आपने बात की अयोध्या में 2017 में 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और मार्जिन अच्छा खासा था। इस बार कई मुद्दे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बेरोजगारी, आवारा पशु उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, उनके पक्ष में काम कर सकता है, तो बीजेपी कह रही है कि मुफ्त राशन और राष्ट्रवाद, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही हैं। फ्री राशन पे अक्सर देखते हैं, लोगों से बात करते हैं तो गांव में जो आवारा पशु हैं उनको लेकर के ग्रामीण बताते हैं कि उनके लिए वो ज़्यादा समस्या है, रात भर उनको अपने खेत ताकने पड़ते हैं। फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन अगर उनके खेतों में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो उनका नुकसान ज़्यादा का है। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि पिछले 3 साल से सेना में भर्ती नहीं आई, TET का पेपर लीक हो जाता है, इम्तिहान होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग बात कर रहे हैं। अगर अयोध्या की बात करें तो वेद प्रकाश गुप्ता ने पिछली बार पवन पांडे को 50,000 वोटों से हराया था। इस बार योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया और अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया है। योगी के समर्थक कह रहे हैं उनका रोड शो अच्छा था, अखिलेश के समर्थक कह रहे हैं उनका रोड शो अच्छा था। किसका वोट मिलेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस बार जमीन पर ऐसा क्लियर नहीं कह सकते हैं कि एज किसको है। बराबरी की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, और 10 तारीख को पता चलेगा कि नतीजा क्या रहेगा। लेकिन लोगों ने राम मंदिर के नाम भी वोट किया है, तो वहीं हमने देखा है युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर के भी वोट परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका सौरभ। ये दिख रहा है जमीन पे कि लोग वोट परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं, और बेरोजगारी और आवारा पशु ये एक मुद्दा है इस चुनाव में। जमीनी मुद्दे जो हैं वो यही हैं। धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर की वोटिंग हुई है, और इस समय इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।